First class, whoever missed, we just learned some techniques about balancing and all. We will anyway do those once again. So today we will be actually getting into our class. So from today, there is no more looseness, right? So your first chapter, chemistry, we have got 4 chapters, children. A little bit of generic talk. We have 4 chapters: chemical reactions and chemical equations, followed by acid, bases, and salt, followed by metals and non-metals, followed by carbon and its compounds. Okay. Now the way we do, okay, you should also understand. So whenever you study chemistry, whether you are studying it now or you are studying it for the years to come, chemistry is divided into 3 sections: inorganic chemistry. So आज का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, that's a part of inorganic chemistry. Okay, then there is a part of chemistry which is known as physical chemistry. Grade 10 में there is nothing about physical chemistry which is going to bother you. Physical chemistry 11 में जाके the entire mathematics portion is here. Like आपने last year कुछ problems किया था ना, so what is the concentration of the solution? Quantitative problems, Vakul, can you just switch on the fan, go to that room? No, go to that room, switch on the plug. Yeah, switch on the plug and switch on number 1. 1 is the fastest. Yeah, sit comfortably now. Fine. So all your numerical problems will be coming out here. Concentration, mole chemistry, और mole पहले हम 9th में पढ़ते थे, but you all are CBSE का प्यारा सा नन्हा सा बच्चा that has been taken to 11, whereas the ICSE child will do mole calculation in grade 9. So all those come under physical. And then the third part is known as organic chemistry. Organic chemistry is the branch where 2 things can happen. Either you will love it or you will hate it upfront. People do MSc also in organic chemistry. If you ask me, I love organic more. And it is all about your knack and love. Many people will find it very difficult. और अगर आपको अभी से difficult लगा, then 11, 12 will also be difficult. Means it's something that it's like something like stitching or embroidery. सब लोग नहीं करते हैं. जो करते हैं उन्हें बहुत मजा आता है. जो नहीं कर पाते उन्हें मजा नहीं आता है. पर ये बहुत ही interesting part है. In our grade 10, we have got a chapter called chemical reactions and chemical equations, which is our first chapter, followed by acid, bases, and salt, followed by metals and non-metals. ये तीनों इसी में आएंगे. And we have carbon and its compounds, जो कि इसमें आएगा. Right? The way we will go is पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर बोर हो जाओगे, फिर इसको घुसाएंगे बीच में, फिर इसको करेंगे फर्स्ट राउंड में. ठीक है ना? मजा आएगा आपको ऐसे करके. ठीक है? So as you start learning chemical reactions and chemical equation, ये chapter में whatever you're going to learn, this will have direct implication here as well as direct implication here. और मैं जब भी कोई चीज ऐसा पढ़ाऊंगा that has got an implication here, I will ask you to keep your red pen beside you so that you keep a note. ये चीज दोबारा आने वाला है. This thing is going to come again. This thing is going to come again. ऐसे करके होगा. ठीक है? The first way of study is whatever is the classroom teaching, please listen to whatever is being taught. Then please, these notes are going to go to you. The video is going to go to you. Watch the video. And then initially, my recommendation is always Lakshmi Singh and Manjeet Kaur, which is this textbook. Your cover page may be different than what I am showing you. So आपका cover page अलग हो सकता है, लेकिन content वही रहता है. ठीक है? So first round we will be going elaborate. When we'll go for revision next round, we will be sticking strictly to NCERT. और be prepared for competency based questions and all, because इस बार ऐसे questions आता है. Directly कोई ये नहीं पूछेगा define this, define that, ऐसे all these cutie questions papers are gone. चलिए आगे. यहाँ तक कोई सवाल? No सवाल? Very good. चलिए आगे. Next. Okay. So our chapter is all about chemical reactions. And before going to chemical reactions, पहले हमेशा वेब सीरीज जैसे शुरू होता है, कहानी अब तक, स्टोरी सो फार. ओके, नाउ फ्रॉम ग्रेड 6 onwards we have been studying something called chemical change. Anurag, Om, Aditi and Atreya, anything that you don't understand, don't gulp it, please puke it right now itself so that no indigestion happens later. अभी अभी puke कर देना, पूछना वहीं रोक देना मुझे. Writing is clear, voice is clear, all of you, one thumbs up. Very good. चलो. Yes, chemical change. Okay, this thing we have learned about in grade 6 में भी हम इसके ऊपर बात और थोड़ा कुछ पढ़ चुके हैं. Chemical change का मतलब होता है कि you are going to have a new substance which will be formed.
new substance and it will come with new properties. सर न्यू प्रॉपर्टीज जब आपने लिखा तो इसका मतलब ओल्ड प्रॉपर्टीज क्या है? सो केमिकल चेंज किस चीज के होते हैं? लाइक देयर मे बी a substance and this substance might have some properties which I'll call as its old properties. Okay, इसके old properties जो भी हैं, after this substance undergoes a chemical change it will form a new substance. In the language of chemistry पूरा नया चीज बन जाएगा. न्यू सब्सटेंस मीन्स न्यू प्रॉपर्टीज. इसका जो प्रॉपर्टी था और इसके प्रॉपर्टी में काफी फर्क आ जाएगा. मिल्क व्हेन वी अलाउ टू फॉर्म कर्ड, मिल्क बिकम्स कर्ड. कर्ड इज जनरली टैंगी इन टेस्ट. केमिस्ट्री वाइज कर्ड इज एसिडिक इन टेस्ट. ठीक है ना? तो नया चीज बन जाएगा इन केमिकल चेंज. केमिकल चेंजेस आर यूजुअली नॉट रिवर्सिबल. ओके, नॉट रिवर्सिबल, पर इसमें कैच है, नॉट रिवर्सिबल बाय usual methods of heating, अच्छा, then cooling. ऐसे करके आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते. सर इसका एक एग्जांपल दीजिए. जैसे मान लो आई हैव गॉट आइस क्यूब्स विथ मी. ये आइस क्यूब्स अभी सॉलिड में है तो मैंने उसको थोड़ा हीट किया, वो वाटर बन गया. वाटर को और हीट किया तो वो क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया. सो यू सी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस. उल्टा करेंगे तो यू कम बैक टू द सेम थिंग. लेकिन केमिकल चेंज में ऐसे बड़ा इतना आसानी से ये सब नहीं होने वाला है. चेंज होता है पर ऐसे नहीं होगा. इस चेंज को करने के लिए आपको देनी होगी एक प्राइस. यू हैव टू गिव अ प्राइस और कीमत, एंड दैट कीमत इज नोन एज एनर्जी. सो व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज associated. Hey, nowadays my spelling is going for a toss. Associated with energy, all because of Bakul. Energy transaction. What is the energy transaction? मतलब जब ये chemical change होगा, then in this process energy, okay, ये प्रोसेस होने के लिए हमारे पास एनर्जी can either be absorbed or energy can be released, and such absorption or release can happen in the form of energy. है तो heat दिख सकता है, light दिख सकता है, या फिर साउंड दिख सकता है. पर बिना एनर्जी के ट्रांजैक्शन के ये प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं. यहां लेते हैं छोटा सा ब्रेक. ओह डार्लिंग, हु इज दिस? राघव. घड़ी में बजे हैं 7:10. बेटा आप 10 मिनट कहां थे? कौन से टावर में वॉचमैन का रोल था आज आपका? सर थोड़ा लेट हो गया था. हाँ लेट. यहां पे दरवाजा लॉक कर दिया था मैंने. वैसे मैं अपनी जबान का पक्का हूं. ठीक है, अगले दिन 5 मिनट के बाद ऐसे भी लॉग इन करोगे तो यहां से राइट क्लिक करूंगा. राइट क्लिक करने से जूम में क्या लिख के आता है पता है? ही हैज बीन किक्ड आउट ऑफ द मीटिंग. मैं वैसे लिखता हूं रिमूव फ्रॉम द मीटिंग, पर वो पब्लिश करेगा रिपोर्ट वाज किक्ड आउट ऑफ द मीटिंग. ना बकुल इज गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट. ओके, ओनली वंस इट हैज हैपेंड बट ही नोज. अच्छा, टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, डोंट ट्राई टू इंप्रेस मी. हैज द स्पीड बीन ओके व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड? Do you think I have gone very fast, or do you think I should little bit more slow down? आप बोलिए, आपने पढ़ना है. अमीश आप बोलो, आपको ये स्पीड ठीक लगा और आपको लगता है कि मैं कुछ स्लो पढ़ाऊं? अनुराग, इज इट ओके? द पेस इज ओके? इट इज नॉट ओवरहेड ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है ना? क्योंकि मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते. मैं वो सब वो तो नहीं. एनर्जी क्यों, वो अलग बात है. आपको ये जो एनर्जी लिखा है, आपको ये कौवा तो नहीं दिख रहा है ना? वो पूछ रहा हूं मैं. अच्छा ठीक है. सो एनर्जी के बिना ये काम नहीं हो सकता है. सो इन अ केमिकल चेंज एनर्जी ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस, एंड सच ट्रांजैक्शन कैन बी आइदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और इट कैन बी रिलीज ऑफ एनर्जी. और ये रिलीज या एब्जॉर्प्शन हमेशा एनर्जी है तो हीट के तौर पे होगा, या तो फिर लाइट के तौर पे होगा, या तो फिर साउंड के तौर पे होगा. जैसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल देता हूं. ठीक है, मुझे खाना बनाने का शौक है. आई लव कुकिंग. सो मेरे बालकनी में मैं हमेशा कोल ला के रखता हूं. कोल, अब ग्रेड 8 तो आपने पढ़ा नहीं अच्छे से. कोल क्या है? कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन.
है ना? तो आपने हमेशा पढ़ा है कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? नाइट्रोजन। ओ कार्बन डाइऑक्साइड, आई नेवर न्यू दैट। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे बालकनी में मैंने बहुत सारा कोल रखा हुआ है कि कभी बारबेक्यू होगा, कबाब बनाएंगे, ठीक है ना? तो सारा कोल जो है ऑक्सीजन तो भर भर के है, ऐसा नहीं है कि हमारे इस साइड में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाना चाहिए, होता है क्या? नहीं। इस कोल को पहले मुझे जलाना पड़ेगा। आई हैव टू सप्लाई एनर्जी, then it will give much more energy. Say suppose I am giving 5 joules of energy, it will give me some 45 joules of energy. So net is a 40 joule output. तभी ना मेरे कबाब उसमें बनेंगे। कॉमन सेंस लगाओ। मैं जो दूंगा इसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आपकी मम्मी आपको क्या बोलती है, जाओ जाके रत्नदीप से एक पैकेट मूंग दाल लेके आओ। आप क्या आंसर देते हो? अभी नहीं, ठीक है, अपने लिए किंडर जॉय भी ले आना। एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा दिया ना। तो देखो आप एकदम आराम से, वो क्या आप लोग पहनते हो? क्रॉक्स पहन के चले जाते हो, बिना एक्टिवेशन एनर्जी के तो नहीं जाते हो, राइट? सो वंस यू गिव, हाँ, बट इन द एंड ऑफ द डे योर मदर इज ट्राइंग टू सी, मेरे को तो दाल चाहिए ना एंड ऑफ द डे। If the kinder joy was more costlier than the dal, then the whole process is not giving any energy back. It is energy intensive process. Here we are getting energy. इतना समझ में आया? अच्छा, ठीक ही बात है। कैंडल है आपका, कैंडल लाइट डिनर करने जाते हो आप डेट पे कैंडल लाइट डिनर में आप क्या जला रहे हो? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो वहां से रोशनी आती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और दिवाली में जिस नेबर को डिस्टर्ब करने की इच्छा है, वहां भी आप एक कंबस्शन रिएक्शन करते हो। वहां तो लाइट भी होता है, हीट भी होता है, साउंड भी होता है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है ना? जनरली विदाउट एनर्जी ये सब केमिकल रिएक्शंस हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आटा डो विच इज मेड टू चपाती, आप हीट सप्लाई करते हो तभी जाके वो बेक हो जाता है। अब रोटी को वापस सॉफ्ट करके आप क्रश करके उसका आटा बना के वापस गूंदोगे तो उसमें वो बाइंडिंग नहीं रहेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? मिल्क कर्ड बन जाना, कच्चा वाला फल पक जाना। अच्छा, हैव यू टेस्टेड कच्चा आम? हाउ इज द टेस्ट? सार, खट्टा होता है। सार इसलिए होता है क्योंकि कच्चे फलों में एसिड रहता है। ये भी लिख के रख सकते हो। ऑल कच्चा फल्स हैव गॉट ह्यूज सिट्रिक एसिड in them and acids will always make it sour. And then when the fruit ripens, we call esterification, which we will study in organic chemistry. Esters are formed and then it gives you a very sweety smell. That means there is a chemical reaction which has to happen for the berries or for the orange or for that mango, which has to ripen. So that is also what process? Chemical change. हमने खाना खाया, पनीर, डाइजेशन होना है, that is also a chemical change. सांस ले रहे हो आप, ऑक्सीजन सूंघा, ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाके क्या करेगा? खाने के साथ बर्न करेगा हमारे फूड को। और ब्लड में क्या आ रहा है बेटा? ऑल द फूड इज ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन सब मिलके क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, एंड गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी टू पुल योर ईयर्स। यस और नो? सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज। ये समझ में आया? तो सर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ऑल दीज केमिकल चेंज हैपन बिकॉज इस केमिकल चेंज में जो ये सब्सटेंस आप देख रहे हैं ना बच्चा, ये सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस टू फॉर्म दिस, जो केमिकल चेंज पढ़ते थे वो तो तब पढ़ते थे जब आप छोटे से बच्चे थे। अभी आप ग्रेड 10 में आ गए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं दैट द सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल रिएक्शन। अब स्टोरी क्लियर हुआ? केमिकल रिएक्शन अंडरगो करेगा, रिएक्शन द चाइल्ड रिएक्ट सो मच, रिएक्शन, वो रिएक्शन अंडरगो करेगा तभी वो ये सब्सटेंस से जाके ये सब्सटेंस बनेगा। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? बुक्स विल गिव मच मोर बेटर डेफिनेशन देन मी, बट हम लोग थोड़ा समझ गए। केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस in which substances undergo chemical change to form new substances with new properties। भाई साहब लिख ले, फिर आ जाइए लिख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, है ना? स्पेलिंग का तो आजकल एकदम हालत खराब हो गया है। इलिटरेट फेलो। इट्स अ प्रोसेस। दिस प्रोसेस कैरेक्टराइजेस व्हाट?
अ केमिकल चेंज, अमित साहब समझ में आ रहा है? तो इन विच अ सब्सटेंस undergoes a chemical reaction to form a new substance with new properties. Clear? Have you understood? एक एग्जांपल देते हैं. अच्छा, ये if I turn a slide and anybody feels that he has not noted and you want to note this down, better stop me. हाँ, कि आपको अगर लगे अदिति बिटू समझ में आ रहा है तो अत्रे भाई ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, हेडफोन में कुछ और तो नहीं सुन रहे हैं? Yes, sir. आय शाबाश, मजेदार. Anurag darling, all okay? Understanding? Right. So we are in a position to actually define what is a chemical reaction. A chemical reaction is a process which actually defines a chemical change in which a substance which undergoes the chemical reactions forms new substance. ऐसे जो substance है, ये substance भी हो सकता है या substances भी हो सकता है, singular और plural. Yes, वो सब बाद में. अरे मजेदार. And then in this process, energy involvement will be there, my child, in the form of either absorption or release. दो में से होगा. ठीक है? Absorption और release और new substance बनेगा या फिर new substances. हमारे एक सर थे, वो substance को substance बोलते थे. तो substance और substances forming new substances. और जो substances और substances participate करते हैं उन्हें हम कहते हैं reactants. अरे छा गए तुम लोग. और जो यहां आता है उनको क्या कहते हैं? पूरनचंद नहीं, products. गुस्सा तो नहीं हो मेरे ऊपर? नहीं, आते ही मैंने स्वागत किया था ना, मैं ऐसा ही हूं. मैं सिर्फ बाहर से ही कठोर हूं, मेरा मन बहुत ही है ना. ओम, बाहर से मैं क्रोधित दिखता हूं, दुनिया जानती है मैं तो कितना सॉफ्ट हूं. अरे तू धीरे धीरे जाएगा क्लास से बाहर. ये ऐसे वैसे जो जाते हो ना मस्त मौले की तरह, मार्स में रहते हो क्या? अकेला ही रहते हो उस प्लेनेट में, किसी का चिंता वंता किए कि ना चलते हो? हाउ मच इंजुरीज डू यू गेट लाइक व्हाइल वॉकिंग? धाम से हाथ कहीं लग गया, घर में टेबल से ग्लास गिरा दिया, होता है ना तुम्हारे घर में? 100%. डोंट टेल मी नो. हाँ, पोजिशनल बैलेंस कमजोर है, तो बैलेंस यू. ठीक है. आइए एक मजेदार एग्जांपल देखते हैं. एक मजेदार एग्जांपल हमने यहां पे लिया. एक प्यारा सा दो सिलेंडर. एक सिलेंडर है हाइड्रोजन का, एक सिलेंडर है ऑक्सीजन का. ठीक है ना? दो सिलेंडर लिया यहां पे और क्या करते हैं? दोनों को खोल के मिक्स कर देते हैं. क्योंकि सर हमने पढ़ा है बचपन के क्लासेस में, हाइड्रोजन मिक्स विथ ऑक्सीजन गिव्स अस व्हाट? वाटर. ये हमने पढ़ा है. तो इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की सिलेंडर को खोलो, ऑक्सीजन के सिलेंडर को खोलो, दोनों पाइप को एक साथ मिक्स कर दो और वहां साथ में ऐसे पानी. ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा नहीं होगा. ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यहां नहीं, ये नहीं दे रहे हैं. This reaction does not happen in that way. एनर्जी आप नहीं दे रहे हैं. लेकिन अगर हम अच्छी तरह से देखिए, if we try to watch properly, this fellow is explosive. And as I said, this fellow supports combustion. Always remember, oxygen is not flammable. Oxygen does not burn. Oxygen supports in burning. So you have got hydrogen, which is like a bhasmasur. And you have got oxygen which says हाँ जलो. लेकिन इनका जो बच्चा पैदा हुआ ना, ऐसा प्यारा सा एक बच्चा, कितना प्यारा है. इसका नाम है वाटर. और ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है. हाय हाय, दो दैत्यों का बेटा भगवान जैसा पैदा हो गया. ऐसा कैसे? तो ये आपको प्रूफ करता है दैट न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज. पेरेंटल प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली forgotten in the entire process. जरा इन चित्रों को बना लीजिए बेटा. इन ड्राइंग्स को बनाने के लिए हम मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए. अन्विता बोर हो रहे हो क्या? अमिश तो पूरा बोर हो गया है. पता नहीं कहां भेज दिया पापा ने, है ना? ठीक है.
एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए। हमने सल्फर लिया, सल्फर इज अ पाउडर विच इज प्रेजेंट इन ऑल एंटी फंगल क्रीम्स। फंगस होता है ना बॉडी में फंगस, और यू हैव इच एंड एवरीथिंग, सो सल्फर विल बी देयर। हिंदी और आयुर्वेद में इसको कहते हैं गंधक, ठीक है। सल्फर का हमने पाउडर बनाया, ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना। और साथ में हमने लिया आयरन को भी हमने पाउडर बनाया, ठीक है, कुकिंग के चैनल की तरह। 1 चम्मच सल्फर लीजिए और स्वाद अनुसार 1 चम्मच आयरन पाउडर लीजिए। दोनों को हमने एक क्रूसिबल, अच्छा दीज आर न्यू वर्ड्स। क्रूसिबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप बाउल, वेरी गुड, जैसे आप घर में छोटा सा एक दाल देते हैं, बोलते हैं कैन आई हैव अ कटोरा, द सेम कटोरा दैट यू यूज इन अ लैब इज कॉल्ड अ क्रूसिबल, इट्स मेड अप ऑफ पोर्सलिन एंड इज फॉर हीटिंग। तो इस क्रूसिबल में हमने क्या क्या ऐड किया बेटा, हमने इसमें ऐड किया 1 चम्मच सल्फर, और क्या ऐड किया, स्वाद अनुसार आयरन ऐड किया। खाओगे अमिश, लोहे जैसी ताकत आएगी। ये दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास एक बदमाश बच्चा है, ये राघव की तरह, वो क्या किया, ऐड करने के साथ साथ उसके अंदर बदमाशी छा गया, है ना। बदमाशी छाने के बाद वो क्या किया, वो इधर एक मैग्नेट का टुकड़ा लेके आ गया, ठीक है ना, एक मैग्नेट का टुकड़ा लेके आ गया, एक मैग्नेट का टुकड़ा लेके आ गया। अब क्या होगा, क्या होगा, मैग्नेट बुलाएगा ना आयरन को, आजा माही मेरे, आजा माही मेरे, आजा आजा आजा, मैग्नेट बुलाएगा आयरन को, और हमारे सारे जो आयरन है ना बेटा, वो सारे आयरन मैग्नेट में जाके चिपक जाएंगे। समझ में आया। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, अब 2 मिनट के लिए इसे देखो, जैसे YouTube वीडियोस में बोलते हैं ना 5 मिनट्स अर्लियर, इसको क्या करो, इसको हीट कर दो, हीट कर देंगे। जैसे आप हीट करोगे ना, ये पूरा चीज जो है, ये जो रंगारंग कलर आपको दिख रहा था ना, ये पूरा चीज कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा चीज कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एक ब्लैक कलर का मास फॉर्म हो जाएगा, अ ब्लैक मास विच इज लाइक फेरस सल्फाइड बन जाएगा, एक ब्लैक मास फॉर्म कर जाएगा। अब उस शैतान बच्चे को बोलिए दोबारा मैग्नेट लाने के लिए, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेरेंटल प्रॉपर्टीज लूज हो चुका है। क्यों लूज हुआ, क्योंकि नया सब्सटेंस विथ नया प्रॉपर्टीज फॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन कुछ तो हुआ होगा, और वो क्यों हुआ, क्योंकि ये हीट, जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे ये कारोबार आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया। इसका मतलब है कल तक मैं अच्छा बच्चा था, फिर मैंने मोमबत्ती से अपना पूरा शरीर जला लिया, तो फिर मैं खराब बच्चा बन गया, है ना। केमिकल चेंजेस, इज दिस अंडरस्टूड, राइट? ओके, सो एट दिस जंक्शन टेल मी माय चिल्ड्रन, so much of discussion we had, we talked about something called a chemical change, which was a prelude to our discussion. Okay, next we spoke about chemical reaction, and as we spoke about chemical reaction, we talked about something called reactants, we spoke about something called products, then we spoke about something called energy. Okay, and we also added something called, in this chemical reaction, new substance, new properties, new properties. आप सब लोग इसको एक बार देख लो और अपने अपने मन की अंतर को पूछ के देखो, क्या आपको ये सबका आंसर, मतलब whatever you learned, are you able to answer yourself whatever you learned? So it will be very easy for you to answer today. If you don't read all these things and come for the next class, then all these things will be looking like Hebrew and Latin. And the human mind, this has to be revised within 36 hours. हर बार बोलता हूं, कुछ बच्चे करते हैं, जो करते हैं वो रोते नहीं हैं, और जो नहीं करते हैं वो बाद में रोते हैं, फिर वो भी रोएंगे, उनके पेरेंट्स भी रोते हैं. He is actually facing a lot of difficulty in chemical reactions. Could you give him some worksheets? और टाइमली एक शीट पर लेता तो वर्कशीट की जरूरत ही ना पड़ती, है ना. सक्सेना साहब समझा आपने? अच्छा, वर्मा साहब.
कोई बात नहीं, ठीक है, चलें आगे। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन, एनीवन एट दिस स्टेज? नो, फाइन, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट थिंग शुड बी, ये हो आप, अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आ गया, हाउ डू आई गेट टू नो that a chemical reaction has taken place? बात समझ में आ रहा है आपको? अब हर बार तो आपके सामने मैग्नेट वाला कारोबार नहीं होगा ना, हर बार आपके सामने सिलेंडर खोल के ऐसे पानी वानी तो नहीं बनेगा ना, आपको कैसे पता कि रिएक्शन हो रहा है? हाउ डू यू गेट टू नो दैट अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? सो नाउ फॉर दैट द आंसर शुड बी, answer for that should be characteristics. Characteristics मतलब हिंदी में विशेषताएं, characteristics of a chemical reaction. हिंदी तो आप लोगों की है गोल, इसको कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया की विशेषताएं। केमिकल रिएक्शन इज अ रासायनिक प्रक्रिया, उसकी विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ विल यू गेट टू नो? अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखने वाले हैं, एक रिएक्शन में वो उसमें से 3-4 भी हो सकता है, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आइदर ऑफ वन विल बी देयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समथिंग विच इज स्वीट टू ईट माइट बी अ डेजर्ट ऑल्सो, ऐसा है मतलब, समथिंग विच इज अ डेजर्ट स्वीट माइट नॉट बी अ डेजर्ट ऑल्सो, ऐसा टाइप। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। एनसीईआरटी एक बताता है, हम आपको थोड़ा ज्यादा ही बताएंगे। सबसे पता होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये जो भी हम पढ़ेंगे ना, इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल्ड इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहां जो पढ़ोगे वो एबीएस में भी आएगा, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और एमएनएम में भी आएगा। एमएनएम डज नॉट मीन वो हाँ खाने वाला जेम्स नहीं है, मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर रहा हूं भाई साहब, एमएनएम चॉकलेट्स मत समझ लेना, है वो एमएनएम बोलते ही खुशी आ गई मन में। एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पिटेट, अरे क्या हो रहा है ना आजकल, रेसिपी क्या अतरे कुछ मंत्र पढ़ रहे हो क्या? सब गड़बड़ हो रहा है राइटिंग। प्रेसिपिटेट। थर्ड इज चेंज इन कलर, चेंज इन कलर like a chameleon, camouflage, change in color. Okay. 4, evolution, or sorry, change in color. The fourth one is change in temperature, and fifth one is, ये फिफ्थ वाला आपके बुक में नहीं रहेगा पर देख लो, चेंज ऑफ स्टेट। एक एक करके पढ़ेंगे, आज ज्यादा नहीं जा पाएंगे, आज देखते हैं, पहले इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट मींस ये सब चीज हो सकता है, कोई एक हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हो सकता है, एक में 3-4 चीज भी दिखा जा सकता है। ठीक है, चलें आगे। आइए सबसे पहले देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ सम कंटेंट विल कम विच विल बी लिटिल बिट हाई लेवल कंटेंट फॉर यू, पर 1-2 बार देखते देखते सब नॉर्मल हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहां एक पेरेंट रिएक्शन आपको लिखवा रहे हैं। आई एम गोना मेक यू राइट अ पेरेंट रिएक्शन व्हिच विल कीप ऑन हॉन्टिंग यू थ्रू आउट ग्रेड 10. So the more you read about it, the more it becomes clearer. Okay? Acid. देखो बच्चों, please cooperate with me. You don't know anything about acid in this chapter, but थोड़ा देर absorb करो. Acid reacts with a metal to form
metal salt and releases hydrogen gas in the process. ये रिएक्शन आप भूल ही नहीं सकते हैं, मन में डाल लो पूरा. Acid reacts with metal to form metal salt and releases hydrogen. ठीक है ना. थोड़ा सा एसिड के बारे में जान लेते हैं. एसिड कौन होता है? मैं हूं प्यारा सा एसिड, मैं हूं एसिड. अगर मैं एसिड हूं, so I should be in a process to release something which is called a hydrogen ion. हाइड्रोजन आयन. देखो अभी ये कहानी से कितना पीछे जा रहे हैं अभी हम लोग. हाँ, अगर हाइड्रोजन आयन है तो पहले हाइड्रोजन के एटम को देखिए. ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिए, और होता है एक इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? अगर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रैफिक जैम में कहीं खो दिया, तो इसके पास क्या बन जाता है? वो हाइड्रोजन आयन बनता है. क्या ये हाइड्रोजन आयन और नहीं, कुछ और नहीं, एक प्रोटॉन नहीं है? हाँ, हमारे पास एक तो प्रोटॉन था और एक तो इलेक्ट्रॉन था. हमारा इलेक्ट्रॉन मारा गया जंग में, तो घर में कौन बचा? प्रोटॉन. इसीलिए हम हायर क्लास में ये भी पढ़ते हैं कि एसिड इज समवन हु रिलीजेस अ प्रोटॉन. बच्चा ये जो भी लिखा रहा हूं ना, प्लीज कीप राइटिंग दीज थिंग्स. दीज थिंग्स आर योर बेसिक्स फॉर ग्रेड 11. डोंट बी वेरी हैप्पी अबाउट ओनली ग्रेड 10 इफ यू आर वांटिंग टू स्टडी साइंस इन नेक्स्ट ईयर. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए. इनको लिखते रहिए, आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और ये आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स समझने में बहुत आसानी करेगा. एसिड इज समबडी हु रिलीजेस अ प्रोटॉन. इसीलिए इस प्रोसेस को 11 में आप पढ़ोगे. प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस. प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन वर्ड जहां सुनोगे उसका मतलब एसिड पैदा हो रहा है भाई साहब. एसिड जब भी अपना कारोबार दिखाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन. एसिड्स रिलीज प्रोटॉन्स. व्हाट आर प्रोटॉन्स? हाइड्रोजन आयंस. सो व्हाट वर वी स्टडीइंग? एवोल्यूशन ऑफ गैस. हमारे लिए तो यही चीज सिर्फ काम का है, पर ये काम का चीज कहां से आएगा? ऐसे वैसे तो गैस नहीं आएगा. आपको हमेशा एग्जांपल्स देने होंगे जब आप एक्सप्लेन करोगे एवोल्यूशन ऑफ गैस. तो एक चीज याद रखिए, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट. ठीक है ना. अब जरा एसिड के लैंग्वेज को देखते हैं. हायर लेवल स्टडी हो रहा है बच्चा, ध्यान दो. एसिड, एसिड को हम HX करके लिखते हैं सिंपल भाषा में. ये X कुछ भी हो सकता है. वैसे आपके लिए अगर आसानी से देखें तो इसको हम हैलोजन फैमिली से लेके आते हैं. हैलोजन फैमिली. अब हैलोजन फैमिली कौन है? वो जो हमारे घर के पास रहता है, ग्रुप 17 में जो रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन फैमिली है. समझ में आया? तो एक ले आओ सबसे पहचान वाला HCl. तो ये एसिड क्या बन गया आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हम इसे नॉर्मली X को कैसे दिखाते हैं? क्लोरीन को क्या दिखाते हैं? HX दिखाते हैं. ऐसे भी आप देखो, अभी उस दिन आपको कुछ कुछ एसिड्स बताया था. H2SO4, तो वहां पे X आपका सल्फेट है. HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसमें आपका X क्या है? नाइट्रेट आयन है. H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसमें आपका X क्या है? कार्बोनेट आयन है. क्लियर? एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, दीज आर हाई लेवल, प्लीज पूछा करो वहीं पे. ठीक है ना. तो ये हो गया सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, और ये क्या है? क्लोराइड. उस दिन बोला था जब अकेला आता है IDE, कार्बन में ऑक्सीजन अकेला आया, कार्बन डाइऑक्साइड, IDE. सल्फाइड, फेरस सल्फाइड in the previous example because he came alone without any bag and baggage. FeS होगा बिल्कुल. कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, हाइड्रोजन कैल्शियम नाइट्राइड, अकेला कोई आएगा? वेरी गुड. ऐसे पूछा करो बेटा. ठीक है. तो ये हमारा बन गया एसिड. हाँ बोलो बेटा प्लीज. It will apply to any acid. Later on we will see whether it goes to acid or not. Hold it now. Hold it now. That we will see. This is a parent equation. Hold it. This will not apply to organic acids also.
that is when you will try to understand. See, anything which is beyond in the course, don't bring it right now, because then you cannot study something understanding how to fail this, because in that case what will happen, you will not understand the beauty of this, है ना. सारे बच्चे जब पैदा होते हैं बचपन में, when you go to the maternity ward and you see kids, don't all the kids look very cute? बड़े होके सब क्यूट थोड़ी रहते हैं, उनमें भी तो कोई ना कोई एक डकैत और स्मगलर पैदा होगा ना. पर उसको स्मगलर पहले समझ के प्यार नहीं करेंगे क्या? जब वो बच्चा था प्यार तो करेंगे. All kittens and puppies look very cute. Within them there will be some puppy who will grow up and bite somebody in the township. फिर डॉगी डॉगी हल्ला होगा. ठीक है, अनुराग टेंशन मत लो, वो नाइट्रेट हम आएंगे बाद में, वो नाइट्रिक एसिड का एक और प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. यस सर, बोलिए सर. What is HX? HX is an acid, just like okay. Do you know the date? The date in any electronic device is DDMMYYYY. This is the format of writing a date. ये समझ में आता है कि नहीं? बोलो. That is the same. HX is like an acid. X can be a Cl, HCl, hydrochloric acid. X can be SO4, then it's a sulfuric acid. It's just like that. HX समझ लो एक acid है. Clear? Okay. तो हमारा acid जो HX है, वो रिएक्ट करता है किसी भी मेटल M के साथ, और एक मेटल सॉल्ट बनेगा जो कि MX होगा, और उसके साथ वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा. This is actually, I'm not going by the count of H and M. Just try and understand. Any acid and HX reacts with a metal M to form a salt which is MX and will give you hydrogen in this case. ठीक है, चेंज कर सकते हैं स्लाइड को थोड़ी देर के लिए. आइए जो भी चीज पढ़े उसको देखने की कोशिश करते हैं. हमने लिया एक एसिड जिसका नाम है HCl, और इसको हमने रिएक्ट करवाया मान लीजिए जिंक के साथ. ठीक है ना, तो ये क्या फॉर्म करेगा? जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा. अब ये Cl2 क्यों बना वो भी बताएंगे आपको, और इस प्रोसेस में वो हाइड्रोजन भी देगा. इस तरह से रिएक्शंस नहीं लिखते हैं. रिएक्शंस लिखते वक्त रिएक्शंस बताना पड़ता है. सपोज यू टेक अ बॉय बकोल, हाउ गुड हाउ बैड, यू हैव टू मेंशन दैट. सो एन एसिड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट AQ. AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस. एक्वस मतलब पानी मिलाया हुआ है. Aqua means water. Zinc is a metal, so it will come in solid shape. Zinc chloride is a salt, so it will always be aqueous. And hydrogen is a gas. थोड़ा सोचने की कोशिश करो. ये तो आप अलग अलग लिखे हो, पर पूरी चीज एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होगी. टेस्ट ट्यूब में रहेगा क्या? एसिड HCl. उसमें आप एक छोटा सा पीस ऑफ जिंक डाल देंगे. उसके बाद उसी टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाएगा? कुछ एक कलर और एक liquid will remain. That liquid is nothing but zinc chloride, which is also aqueous, and some gas will come out. That is the hydrogen gas. इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं. तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर मैं 2 डालूं तो ये बन जाता है. बेटा जो आप पढ़ोगे ना अपने इस क्लास में, you will study generally metals, group 2 वाले metals, magnesium, calcium, group 2, magnesium, calcium, ये सब 2+ में आता है. जिंक ट्रांजिशन में आता है, वो भी 2+ में आएगा आपको. और कॉपर जो आप पढ़ोगे, कॉपर कैन कम इन +1, कैन कम इन +2, ये ज्यादा पढ़ोगे आप. और ग्रुप 1 में कौन कौन है? नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम, व्हिच विल बी इन प्लस, पोटेशियम विल बी इन प्लस. आपके लिए इतना काफी है. एल्यूमिनियम विल कम इन Al3+. इसके ज्यादा आप CBSE में नहीं जाओगे. ग्रुप 1 एक्वस का मतलब होता है बेटा पानी मिलाया हुआ. मैं आपके घर पे गया, सर आए हैं, सर को कुछ तो देना पड़ेगा ना. अब सर को गुड नाइट का लिक्विडेटर थोड़ी पिलाओगे कि सर बहुत डांटते हैं इनको लिक्विडेटर खिला दो. तो सर को क्या खिलाओगे? टैंक पिलाओगे. टैंक कैसे बिकता है बेटा? पाउडर. वो पाउडर आप किस में बनाते हो? एक ग्लास पानी में डालते हो. सो यू आर फीडिंग मी एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टैंक. क्लियर? एग्जांपल के साथ सब क्लियर हो जाते हैं, चिंता है. ठीक है, कहाँ था मैं? हाँ, और थोड़ा थोड़ा हमेशा केमिस्ट्री में ना पीरियोडिक टेबल पढ़ाते नहीं है, पर जितना आप पीरियोडिक टेबल को जानोगे आपको इजी होगा. जान ले. ग्रुप 1 का फॉर्मूला था, क्या था? है ली ना की रब से फरियाद. तो क्या हो गया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम. और ग्रुप 2 में क्या है बेटा? मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी. बस ये हो गया ग्रुप 2. इतना याद रखिए. आपको सिर्फ बेटा मांगे कार तक ही ठीक है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रुबिडियम,
भाई जरूरत नहीं, इधर टेंशन मत लो यार, लाइफ में बहुत टेंशन। सीएस सीजियम है, लीना की रब से फरियाद, कोई बोलता है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये भी बोलते हैं, जिसको जो मर्जी। हम लोग को वो इंग्लिश वाला गाना नहीं आता, देसी बच्चे थे ना तो देसी टेक्निक पे सीखे, राइट। सो दिस इज आवर गैस। Children, in this chapter, when we will be studying about evolution of gas, and this is from your class 10 exam point of view, evolution of gas. This gas will be no other gas but only two. One is hydrogen or one is carbon dioxide. Excellent. So we are going to study more about hydrogen today and we'll also study about carbon dioxide. समझ में आ रहा है ना? Property 1 ही पढ़ रहे हैं, evolution of gas. कोई आपको ये नहीं पूछेगा write a characteristic. They will give you all question which hover around this. तो जितना आपका concept clear, उतना आप आंसर दे पाएंगे। तो हमने evolution of gas में पहला गैस किसको स्टडी कर रहे हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे पैदा होता है? Acid reacts with metal to form metal salt and gives liberates hydrogen. तो ये वाला इक्वेशन आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी आएगा, एसिड मेटल एंड नॉन मेटल में भी आएगा, और ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें तो आना ही है। टाइम फॉर अ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ड्रिंक्स बीइंग कॉल्ड इन द फील्ड, एनी डाउट और एनीथिंग? तो पानी वानी पीना है, पी सकते हैं। ओम साहब समझ में आ रहा है या बहुत मजा आ रहा है? मतलब कैसा स्नो वाइट की कहानी हो रही है? इट्स गुड, गुड, इट्स गुड। एक जेंजी बच्चा है कम से कम जो बोलता है इट्स गुड, मुझे अच्छा लगा, मुगैम्बो खुश हुआ। आगे बढ़े बगुल। सो आफ्टर बाइंग शूज व्हाट डिड यू बाय दैट डे? इट वाज वेयर इन ऑर्बिट मॉल? नहीं 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 नहीं, आई एम आस्किंग समवन एल्स हियर। हाँ, सरल सिटी मॉल। सो व्हाट डिड यू ईट? सबवे। हमेशा फिरंग खाना खाता है। सबवे, सबवे में क्या मिलता है? नहीं, फुट मिलता है ना, 1 फुट 2 फुट, हाँ वही 1 फुट आधा फुट, तो कुछ ऐसा खोल के उसके अंदर कोई घास फूस दे के अच्छा सा एक व्हाइट कलर का पैकेट में चप 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 करके पैक करके देते उसको लोग, बड़े मी एंड माय सबवे ऐसा। चले आगे आइए। सो आवर स्टडी इज ऑफ evolution of gas, and when we study evolution of gas we study two type of gas, hydrogen and carbon dioxide. Right now we are studying about hydrogen, and the parent reaction for hydrogen will always be acid reacts with metal, है ना, to give metal salt। इसलिए acid basis and salt में salt को भी हम पढ़ेंगे, metal salt, and releases hydrogen gas। अब इसकी हाइड्रोजन क्या है बेटा? हाइड्रोजन इज अ एक्सप्लोसिव गैस, भस्मासुर है वो, एक्सप्लोसिव। और ये क्या करेगा? इट ऑलवेज बर्न्स विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड व्हेन अ लाइटेड matchstick is brought to its vicinity। समझ में आया? Hydrogen is an explosive. That means the test tube which we had, in which we had HCl, अब HCl तो डाल दिया बेटा, so whatever liquid is here right now, this is acid? No, this is not acid. After the reaction, this is what? ZnCl2, which is a salt, and you are having hydrogen gas which is coming out. So one way to test the presence of hydrogen gas is, यहाँ पे आप एक पाइप लगा लीजिए and push the pipe into a lather। lather जानते हो ना? Like when you go to good quality hotels and all, you get that bath gel and you put it in the bathtub and it creates a lot of foam। और lather है, उसमें अगर इस पाइप को लगाओगे तो that foam will बक 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 करके इतना foam जैसा निकल के आएगा। You can do some, how many of you have seen that Baby's Day Out, not Baby's Day Out, Home Alone? तो होम अलोन में वो जो ये नरान नरान करते रहता है ना, वैसे ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लाइटेड मैच स्टिक को ले आएंगे, इफ यू ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक व्हिच इज लाइटेड, तो ये पॉप साउंड जैसा फटेगा। अच्छा, पॉप साउंड मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस फ्लेम नहीं आएगा, यू विल सी समथिंग लाइक, बिकॉज़ यू ऑल डोंट डू प्रैक्टिकल्स, यू डोंट गेट द प्लेजर ऑफ इट। दिवाली में एक बटरफ्लाई जैसा एक होता है ना क्रैकर, ठाप 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 फटते रहता है, ये बिल्कुल वैसे फटेगा, ठाप ठाप ठाप। हाँ,
Yeah, it will give you flame but not continuous, and burn as bursts. Tup, 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 as a pop sound. So these two words are very, don't write Diwali cracker and all. This is the keyword. And lighted matchstick. सर मैंने मैचस्टिक लिखा था, अब बुझा हुआ मैचस्टिक लाने से थोड़ी जलेगा. Lighted. Lighted is an adjective out here. विशेषण जो संज्ञा की विशेषता को बताता है. कैसा मैचस्टिक? लाइटेड मैचस्टिक. ठीक है अमित साहब? Yeah, clear? So what? Yes, sir. Why do we like bring the matchstick towards the hydrogen? Why do we? If you don't bring it near hydrogen, how will you test? Hydrogen is invisible, ना बेटा. ये जो fumes आ रहा है, yeah, because it is hydrogen gas which is coming out. You see the reaction? We had one piece of zinc here. This was originally acid. When we popped the zinc into it, the entire zinc got dissolved. The color of this will change. It will become zinc chloride. And while the color is changing, जैसे आप वो पेप्सी के बॉटल को थोड़ा शेक करके खुलने से bzzz होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड is coming out. यहाँ पे भी इस प्रोसेस को हम कहते हैं effervescence. EFFERVESCENCE. effervescence मतलब बग 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 करके निकलेगा. लेकिन आपको हाइड्रोजन तो दिखेगा नहीं. It is a colorless, odorless, and you can't see it. So how do you test its presence? जैसे यहाँ से कुछ निकल रहा है बग बग, मैचस्टिक ले आओ पास में. अगर मैचस्टिक ठप ठप करके बर्न करता है तो इसका मतलब वो और नहीं, कोई और नहीं, हाइड्रोजन है. और इसका एक ही टेस्ट है. ऐसा कोई हीट के प्रेजेंस में नहीं, ये ऑटोमेटिक हीट जनरेट करेगा. हीट नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर में होगा. That is all separate. Don't mix. See, whatever terms I have not taught you, don't bring them. Right now, just try to understand. I tell you ना, अभिमन्यु बनने से चक्रव्यूह में मारे जाओगे. आधे आधे सुन सुन के घुसना है. अभी आप इतना ही समझिए. ये मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें थोड़ा सा HCl डाला, dilute HCl, and then take one small piece of zinc and put into it. Immediately you will see bzzz, effervescence. Some gas is coming out. उसी वक्त अपने दोस्त को बोलो एक मैचस्टिक इसके पास पकड़ने के लिए. The matchstick will tap tap ऐसे burn करेगा. In the air also you will see some burning things. Have you understood? Have you seen some movie scenes in which petrol is spilled out and hero उसी में एकदम फायरिंग कर देता है, डिचके मारते, फिर पूरा फायर आ जाता है? बिल्कुल वैसा है. If the atmosphere has a volatile gas, it will burn. And what is so great, I am teaching you in grade 8, what is a flame? A flame is the vapor portion of a fuel which catches fire. है ना? Flame is what? Flame is the vaporized portion. Any fuel which vaporizes will give a flame. याद है? Others will glow. कोल ग्लो करता है, कैंडल फ्लेम देता है. तो यहां भी इस टेस्ट ट्यूब के आजू बाजू में there is a combustible gas which is rotating. Not rotating, is moving all around, spread all around, and you're making a lighted matchstick, so it burns. But the burning will be because hydrogen needs a lot of oxygen to burn. वो पाक ठाप करके आवाज आएगा आपको. Clear? क्या मैं इस हाइड्रोजन की कथा को समाप्त कर सकता हूं? ओम हाइड्रोजन नमः कर सकते हैं. किसी को कोई डाउट है हाइड्रोजन की कहानी पे? हाइड्रोजन, सो एसिड कौन होता है बेटा? एसिड इज एनीवन हु कैन रिलीज अ प्रोटॉन. अ प्रोटॉन इज नथिंग बट अ हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन के पास जन्मजात दो ही चीज है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन मारा गया ट्रैफिक जैम में, बचा कौन? प्रोटॉन. इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटोनेशन. ठीक है, चलिए आगे. अब क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे CO2. और इस CO2 के ऊपर जो भी पढ़ाने वाला हूं, सब लोग ये भूल जाते हैं. CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड. हायर लेवल कंटेंट. थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6. यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4. तो कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन. बहुत अच्छी बात है. उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि है 2 6. तो ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 5, यहाँ पे एक 6. समझ में आया? उसी तरह एक और ऑक्सीजन आता है 1 2 3 4, सॉरी
1 2 3 4 5 6। अगर मैं कार्बन का ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर दूं और कार्बन को थोड़ा ऐसा बना देता हूं, ठीक है, ये आपके हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहता है जो तुम्हारा स्केच पेन वो मेरा भी स्केच पेन। बहुत अच्छा। अब इस ऑक्सीजन के लिए काउंट करते हैं कितने स्केच पेन है। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इस कार्बन को कितने मिले? 1 2 3 4 और ये 5। एक और स्केच पेन पेयर शेयर कर लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या कहता है? ऑक्सीजन खुश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन संतुष्ट। इस कार्बन को कितने मिले? 6, अभी भी 2 चाहिए, तो वो इस तरफ देखेगा, योर स्केच पेन एंड माय स्केच पेन, लेट्स शेयर। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। इसी को कहते हैं CO2, which is a covalent bond formed by sharing of electrons। हायर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी उतना नहीं समझने से भी होता है, जिनको शौक है वो समझ सकते हैं। A bond which is formed by sharing of electron is known as a covalent bond। This bond is known as covalent bond। And a bond which is formed by transfer of electron is called a electrovalent bond। अगर आपको वो भी देखना है तो ये देख लीजिए एक बार फिर से। Hydrochloric acid reacts with sodium, forms what? Nacl, and gives you hydrogen। So ठीक है, इसमें कैसा रहता है? सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम इज 11 281, so sodium has only 1 electron, right? और क्लोरीन का कैसा रहता है? क्लोरीन इज 287 17 है, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? दोनों की शादी होनी है अभी, तो सोडियम क्या बोलता है? सोडियम सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो देते ही सोडियम क्या करता है? मेरा एक ही बच्चा था, मर गया, तो मैं क्या बना? मैं सोडियम आयन बन गया। और ये क्या बोलता है? ये तो लुटेरा है, तो ये Cl, इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। This a bond which is formed due to transfer of electron is known as a ionic bond, क्योंकि यहां आयंस फॉर्म हुए, एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या आप बोलते हो ना, फ्रॉम टुडे अनन्या एंड मी विल शेयर आवर पेंसिल बॉक्स। ये सब 2-3 दिन अच्छा रहता है, रात को वो पेंसिल बॉक्स किसके पास रहेगा? अनन्या बोलती है आई विल कीप इट विथ मी, टुमारो मॉर्निंग अगेन आई विल ब्रिंग इट। बस रात को मैं सो के बोलता हूं व्हाई विल शी कीप इट, व्हाई नॉट मी? बस झगड़ा शुरू हो गया। यहां ये सब नहीं है, बाबा तुमको बेच दिया, तुमको पैसा मिल गया उसका, नो मोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आयोनिक भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया? कहानी किसकी चल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। आइए चलिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं अभी। आर द सेम बॉन्ड्स। हाँ, वकुल एंड गुड बॉय, one for the other. In star we will write under normal conditions because that is a impossible event है ना usually। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, CaO को हम बोलते हैं, वेरी गुड, CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना? ये है जो आप लोग चूना होता है ना, द रॉक विच यू गेट। अभी स्कूल में आपका ट्रैक एंड फील्ड मीट होगा, रेस होगा, तो टीचर्स PT सर विल से चलो ट्रैक बनाना है, so if you they will give you powder of this thing to lay on the ground wherever there is a batting crease or something. After handling it too many number of times you will find your hand has become very dry, ये हाथ खा देता है। पान की दुकान में जो मिलता है वो भी यही है, इसको थोड़ा पानी में गीला करने से इट बिकम्स लिटिल बिट सॉफ्ट, जो पान में ऐसे लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? चूना। कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज व्हाइट वॉशिंग? व्हाइट वॉश करते हैं ना, दीज आर नॉट व्हाइट वॉश, दीज आर सिंथेटिक एनामल्स, जो आपके स्कूल में या बाहर जो व्हाइट कलर का मारा जाता है सो व्हाइट वॉश कहते हैं। तो व्हाइट वॉश करते वक्त व्हाट विल द गाय डू? द गाय विल बाय लॉट ऑफ चूना फ्रॉम द मार्केट, कैल्शियम ऑक्साइड,
और इसको वो एक बाल्टी पानी में मिक्स करेगा। वाटर कैसा है? एक्वस, ठीक है ना। और ये है सॉलिड। मिक्स करते ही ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो ये रिएक्शन हम कम से कम 40 टाइम्स वी विल सी। सो ट्राई टू सी द ब्यूटी। सर आपको कैसे पता ये OH2 होता है? तो आ जाओ, वाटर है HOH, H2O माने HOH ना, ये H प्लस होता है और ये OH माइनस होता है। एसिड क्या लाता है बेटा? H प्लस। बेस क्या लाता है? OH माइनस। देवता और राक्षस दोनों के मिलन से न्यूट्रलाइज होकर क्या प्रोडक्ट बनता है? वाटर। मजा आया समझ के? इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। बेस हाइड्रोक्साइड लेके आता है, एसिड H प्लस लेके आता है। और जो आप H2O वाटर बोलते हो ना, ये कुछ नहीं, ये डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है। वाटर तो हमारे घर का नाम हुआ ना, मोनू। एक्चुअली वाटर क्या है? डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, राइट। सो ये OH। तो आप सोचो OH का चार्ज क्या होता है बेटा? सिंगल नेगेटिव। और कैल्शियम कहां पे था बेटा? मांगे कार, स्कूटर, कार। ग्रुप टू मतलब पैदाइशी 2। तो इसके साथ शादी करने आया OH, बोला ओम मंगलम स्वाहा, ये शादी नहीं हो सकता, इम्बैलेंस है। कहता है हम हमारे दोनों को लेके आएंगे, ओम सस्तीन स्वाहा, शादी संपन्न हुआ। प्रोडक्ट समझ में आया? केमिस्ट्री इज ऑल द लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर ऑफ साइंस इज केमिस्ट्री। ऐसे बड़ा सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, फालतू बातें बहुत हो गई, मजेदार बातें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। इस स्टेज में बाल्टी में जब ये चीज इसको करेगा ना, आगे हम पढ़ेंगे, ये प्रोसेस हीट भी जनरेट करता है। व्हेनेवर यू पुट चूना in a balty of water, you need to be very careful. You'll immediately see bubbling happening. Highly exothermic है ये। आंख ऐसे करके नहीं गिराने का, पक करके मुंह में आ जाएगा, ठीक है। It will form calcium hydroxide. What is this? So this is calcium oxide, okay, and this is water, and it will form what? Calcium hydroxide. अब ये सब हो गया क्या? ये सब हो गया अमिश, अनन्या, ये सब टाइप नाम। हमें मोनू वाला नाम भी तो चाहिए, तो इसका नाम है क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम ऐड करते हैं, वाटर वाटर ही है, बन जाता है स्लेकेट लाइम। ऐसा समझ गए आप लोग? स्लेकेट लाइम फॉर्म हो गया। अब कारपेंटर क्या करेगा? कारपेंटर क्या नाम? पेंटर। ही विल ऑलवेज आस्क यू फॉर पुरानी धोती या साड़ी है आपके घर पे। अब वो एक और बकेट में एक धोती लगाएगा और इसको पूरा उसके ऊपर से करके पोर कर लेगा, यानी कि ही इज गेटिंग अ फिल्टर्ड लिक्विड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बेस है, थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, ये बेस है क्योंकि इसके पास OH2 है ना। और फिर इसमें वो अपना ब्रश डुबोएगा और वो ऐसे दीवारों पे पेंटिंग करना शुरू कर देगा, है ना। रंगों की दुनिया में आओ, ऐसे पेंटिंग करेगा अपने घरों में। पेंट करते करते अब आजू बाजू में क्या है? आजू बाजू में है पेड़, है ना। और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, लेकिन आप और मैं जैसे बदमाश बच्चे हैं ना, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो अगला रिएक्शन होगा इसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड H2O रखेगा जो कि मॉइस्चर होके निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज limestone. Now we are learning two things. We are learning the process of what do you call thing called carbon dioxide generation, as well as we'll learn the property also. ठीक है। तो ये स्लेकेट लाइम हो गया, और इस स्लेकेट लाइम का एक और नाम होता है लाइम वाटर। अब देखो, ये जो लाइम वाटर है ना, ये लाइम वाटर में whenever carbon dioxide reacts, it will create, this is a precipitate. Calcium carbonate will come out as precipitate. What is precipitate? Next class में पढ़ेंगे। Something which will settle down and it will not, it will separate out. Okay, in the test tube it will separate out, and
दिस कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने से पहले इफ यू वुड हैव हैड धोती से वो फिल्टर किया हुआ लाइम वाटर विल बी एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट इन कलर. दिस इज व्हाट बेटा, लाइम वाटर मतलब CaOH2. इस पे जैसे ही आप CO2 डाल दोगे ना, CO2 डालते ही आपको यहाँ पे क्लाउडिंग होना नजर आ जाएगा. क्लाउड समझ रहे हैं ना आप? धीरे से आपको यहाँ पे एकदम हॉरर शो के जैसा क्लाउडिंग आना शुरू हो जाएगा. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ये है इसका टेस्ट. So if you think that the gas is carbon dioxide, bring a test tube of lime water, take the gas and you bubble it through that lime water. The lime water will start becoming milky. अच्छा, इसका और भी कुछ चीज सुन लो आज का कहानी खत्म होने से पहले. आगे क्लास में फिर पढ़ेंगे मजेदार चीजें. ये बेस है, यानी ये एसिड को न्यूट्रलाइज करा सकता है. ठीक है. सो इन बचपन ना हमारे घरों में, जैसे बचपन में मान लो खूब ज्यादा खा लिया, you also can't eat what we used to eat, so we used to eat a lot. और मान लो indigestion हो गया ना, this used to be a common घरेलू practice. It has been done, experimented on me many times by my mother. What she used to do, चूना पहले सबके घर में होता था, so she will take some tea cup and in that cup ऐसे मेरी माँ एक कप लेगी और उस कप में इतना पोर्शन लाइम वाटर बनाएगी. लाइम वाटर मतलब so that handkerchief या किसी क्लॉथ से स्ट्रेन करके this is lime water. And अगले दिन जैसे मैं उठाऊं ना, खाली पेट में मुझे ये पिला दिया जाएगा. जैसे ही आप पी गए, आपके पेट में क्या है, एसिडिटी हो रहा है ना, तो ये लाइम वाटर जाते ही सारा एसिड को काट देगा. घरेलू नुस्खा, लेकिन आपको बहुत रिलीफ आना शुरू हो जाएगा. थोड़ी देर बाद यू आर रेडी टू अगेन ईट सम मोर पूड़ी एंड कचौड़ी, क्योंकि हमें तो दिन में और किसी के घर में, उस आंटी के घर में भी तो खाने जाना है. समझ में आया? तो हाँ, नो, it is not lime as in nimbu pani. The lime that you eat at the chana wala, bhelpuri wala, that is different. That is American seal lime. That is lemon lime. ये lime water है. It is basic. This is basic. That is a fruit which you are trying to say. Now milk of magnesia is MgOH2. दो सब अलग अलग है. Don't confuse anything that I have not said. Don't say it. Milk of magnesia is for रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिपेशन. वो जो तुम टॉयलेट में जाके घुसे ही रहते हो, बकुल बस हैज कम, बकुल इज स्टिल सिटिंग, उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नॉट फॉर दिस. एंड देन यू मेक फेशियल एक्सप्रेशन, नथिंग इज हैपनिंग. सो दैट इज नहीं. तब साइंस इज टू बी अंडरस्टूड विद एक्सपीरियंस. कल आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा ना. और डॉक्टर पहले बोले हाँ ह्यूमन बॉडी को वहां से उसके बाद योर बॉडी माई बॉडी इज ऑल सेम. तो इसमें कोई हंसने की कोई बात नहीं है. ठीक है. सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ, दो द स्टोरी इज सिंपल, दैट carbon dioxide turns lime water milky. You should know the entire reaction. Calcium oxide, how is calcium oxide produced? Calcium reacts with oxygen to produce calcium oxide. Calcium oxide when mixed with water forms calcium hydroxide, which is the base. Calcium hydroxide में अगर CO2 घुस गया तो वो बन जाएगा calcium carbonate. In fact, if you are little bit familiar with flower plants आप लगाते हो, तो there is a flower plant called petunia. Petunia has got a very strange thing. Suppose I take one petunia cutting from your house and someone's mobile is buzzing. Petunia plant, actually if I bring a cutting from your house and suppose it was blue in color, it is not guaranteed that in my flower plot also it will be blue in color. Petunia is very acid responsive. Once the acidity of the soil changes, petunia will change its color. So if you think your soil is too acidic, you should neutralize it. जैसे मेरे माँ ने मेरे पेट में ये डाला, आपको भी soil neutralize करना चाहिए. तो आपको क्या डालना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट. अब आप इसको खरीदने जाओगे, so once rose bushes were not growing in my tub, तो मैंने चेक करके देखा उसकी एसिडिटी ज्यादा है. मैं कैल्शियम कार्बोनेट बाजार से नहीं खरीदा. ऑल ऑमलेट्स बनाने के बाद जो एक्शेल्स रह जाते हैं ना, ऑल एक्शेल्स आर कैल्शियम कार्बोनेट. सुखाने के बाद मिक्सी में डाला, ऑल एक्शेल्स को पाउडर बना दिया, डाल दिया, सुंदर से रोजेस आने शुरू हो गए. साइंस मजा लेके पढ़ने की चीज है. सो एनी एक्शेल is a rich source of, not rich source, it is calcium carbonate and nothing else. Eggshells are calcium carbonate. This one. ठीक है. आज का रंगारंग कार्यक्रम यहां रखते हैं. इसमें चैप्टर में एक और अच्छा चीज पढ़ेंगे,
चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, वो भी डिटेल पढ़ेंगे। तो इतना कम से कम पढ़ के आइएगा। वीडियो अपलोड होगा, उसको देखिएगा, और पसंद नहीं आए तो रॉटन टमाटोज अपने मॉनिटर पे ही मारिएगा, मेरे घर पे नहीं, ठीक है। सो sorry, yeah.